Okay, welcome back, students. We now continue our chapter combinations, and now we take a word problem, that is application of combinations. This word problem is so simple, easily. In last lecture, we seen that word problem on combination of committee, formation of committee. Now here is the problem on geometry. From geometry, how many chords drawn through 21 points on a circle? Means we know that if there is a circle, then any 2 points, if we join any 2 points, then this segment is called as chord. Any 2 points. To draw chord, we have to join any 2 points. We have to join any 2 points. Here, how many points are there? 21 points. Then from 21 points, if we join any 2 points, then we get a chord. Therefore, number of chords equal to number of chords. We have to select any 2. There are the 21 points, then we have to select any 2 points. There is a selection. Therefore, we use the formula of combination. Notation is that 21, we select 2 points from 21. Therefore, we write this as 21C2. Now, these can be evaluated by using this formula. What is this formula? 21 factorial upon 2 factorial n minus r, 21 minus 2 factorial. Okay, now 21 factorial as it is, and 2 factorial means 2. 21 minus 2 means 9 factorial. Now this is a bigger number. We can split into 21 into 19 factorial upon 2 into 19 factorial. Now this 19 factorial get cancelled, and 2 ones are 2 and 0, that's we get 10, and 21 into 10 we get 210. Means how many chords are formed? 210 chords. This is a simple question, but this type of question are also asked in MPC exam also. This is same question as a number of shake hands. Okay, now we take another example for application of this combination. Yeah, just we have discussed that about the meeting. In a meeting, it was found that 45 handshakes exchange. Full stop. Then we have to find how many members present in that meeting. कोई एक मीटिंग हुई, किसी भी कॉन्फ्रेंस हो सकती, मीटिंग हो सकती किसी की भी. वो मीटिंग में कितने हैंडशेक काउंट हुए? 45. एंड ये हैंडशेक डबल होंगे, यूनिक है, सबने एक ही बार किया होगा, इसलिए इसको हम यूनिक भी बोल सकते हैं. 45 यूनिक हैंडशेक्स आर एक्सचेंज, हैंडशेक्स आर हैपेंड देयर. देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मेंबर्स प्रेजेंट इन दैट मीटिंग. Then we know that if there are the 10 person, the number of handshakes is given by which formula? 10C2, that is combination formula. We already discussed about it. Just also from 21, just now discuss from this question, how many chords are drawn from 21 points. Then we again 21 into C2 means what? We shake any 2 points. We have to shake any 2 hands. Therefore again we use the like this formula. But we know only shake hands, but how many members? Don't know. We can find easily. बहुत easily हम निकाल सकेंगे.
we can write let n be members of meeting. त्या मीटिंग मध्ये n मेंबर्स होते. Therefore number of handshakes, therefore number of handshakes is equal to NC2. Okay, then number of handshakes are given as 45, that's equal to what is the NC2. By using this formula, that for formula for combination, we can write it as n factorial n minus 2 factorial into 2 factorial. Now 45 as it is, n factorial is larger number and n minus 2 is a smaller number. Therefore we can split this larger number n factorial as n into n minus 1 into n minus 2 factorial upon this n minus 2 factorial. What is the value of 2 factorial? Yes, good, very nice. Its value of 2 factorial is 2. Then as n minus 2 factorial get cancelled. Now 45 into 2, that is 90, is equal to n into n minus 1. Now this is the equation is only in n. You can multiply n into this bracket and solve equation for n, and we will get quadratic equation. But instead of making it as a quadratic equation, here is a n into n minus 1, that is the descending order of n, multiplication of descending order of n. Therefore can we write 90 as a multiplication of two consecutive numbers? Yes, so simple. 90 is 10 into 9 is equal to n into n minus 1. Well done. Then by comparison, n is 10, we can write we have n is equal to 10. We have n is equal to 10. Okay, so simple questions are there. आपको सिर्फ जज करना है. आपको पहले जज करना है कि वो क्वेश्चन कौन सा होगा, कैसा सॉल्व करें. ठीक है. आफ्टर दैट वी सी अनदर टाइप. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में भी है. आपके ने कोई JEE की बुक लिया होगा, आपको उसमें मिल जाएंगे. सिर्फ एक बार कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. कॉम्बिनेशन का फार्मूला कब यूज करना है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. कंफ्यूज नहीं होना सर्कुलर परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में. परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट है, इन टिपिकल ऑर्डर डेफिनेट ऑर्डर है. कॉम्बिनेशन सिर्फ सिलेक्शन है, फॉर्मिंग द ग्रुप है. तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले NCR के देखे थे, तो हम फिर से भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. कुछ रिजल्ट्स हमारे पास है. सम रिजल्ट्स आर देयर फॉर कॉम्बिनेशन. ओके, नंबर 1 NCR. in last lecture we see that NCR is equal to NC minus n minus R. Okay, number 2, if NCX is equal to NCY, if combination of the same number n are equal, then this implies that x must be equal to y or x must be equal to n minus y. This is also one of the important results we can solve easily by using these results. And number 3 result is important as a board also and as a JEE also. Okay, the result is so simple. NCR plus NCR minus 1 equal to summation of two combination where n is same and selection, that is R, have the value larger than 1. Okay, एक से बड़ी रहेंगी या कोई एक से छोटा रहेगा, तो उस वक्त जब हम उनका समेशन करेंगे, एडिशन लेंगे, इफ वी टेक द एडिशन ऑफ दिस टू कॉम्बिनेशन, देन वी कैन राइट n plus 1 CR. ठीक है, दोनों को सेम है तो एक से ऐड कर दो. ये इम्बैलेंस है तो एक से ऐड, जो बैलेंस है उसमें एक ऐड कर दो, जो इम्बैलेंस है उसमें छोटे में एक ऐड कर दो, या फिर लार्जर नंबर ले लो. ऐसे कुछ लॉजिक आपके ध्यान में रखो और रिजल्ट्स को अपना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको. इसके ऊपर देखें कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं क्या. काफी सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में भी है आपके.
Okay, first we take a simple types. Question 1. Find NC7 is equal to if NC7 is equal to NC11. Now we have to find the value of n. Okay. Now what we can judge by using this result, these two combinations are equal. Therefore, पहले हम लिखेंगे given NC7 is equal to NC11. This implies 7 is equal to 11 or 7 is equal to n minus 11. दो पॉसिबिलिटीज मिले. कभी कभी दोनों पॉसिबिलिटीज हम अज्यूम कर सकते हैं, कभी रिजेक्ट कोई एक रिजेक्ट भी करना पड़ेगा. क्यों? अब यहाँ पर 11 is equal to 7 है क्या? Therefore this is not possible. We consider only these possibilities, that is 7 is equal to n minus 11. So therefore value of n is equal to what? 11 को इधर भेज दो, 11 और 7 की एडिशन कर लो, क्या हो जाएगा? 18. ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, देख कर लगता है कि क्या है कि, लेकिन आपको प्रॉपर्टी जरूर मालूम होना चाहिए. प्रॉपर्टी अगर मालूम नहीं है तो इसका फिर सोल्यूशन नहीं आता, फिर आपको इसका फार्मूला यूज करना पड़ता. ठीक है. नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल. Same type of question are there. You can solve it. Write down for your assignment. Hope you have notebook as well as pen also. Don't see like a picture, please. This is for your assignment. In this question you have to find r, and in this question you have to find n. Okay. Now let's take another example. If 18c2n is equal to 18cn square plus 3. Okay, you can solve this question, but let's discuss now. What you have to given? Given that 18c2n is equal to 18cn square plus 3. Okay. Now see here, as we use this result, we know that if NCX is equal to NCY, this implies what? X is equal to Y, or X is equal to n minus Y. By using this result, we can write 2n is equal to n square plus 3, or 2n is equal to 18 minus n square minus 3. Now what about that? N square minus 2n plus 3 equal to 0, or n square plus 2n, n square साइड चेंज किया हमने, n स्क्वायर हो गया n स्क्वायर प्लस 2n, 18 माइनस 3 15, उसको भी साइड चेंज कर दो, माइनस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा n के 2 वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेंगे, इस तरह से हमको n के 4 वैल्यूज मिलेंगे. 4 देखते हैं. लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन वी सी दैट हियर इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन b square minus 4ac. What is this b square minus 4ac? This is a discriminant. You must learn about this quadratic equation in previous class, in 10th class. There are the methods of solving the quadratic equation, you know. Then we have to find the value of discriminant. We can check 2 square 4 minus 4ac, 4 into 1 4, 4 into 3 12, 4 minus 12, that is less than 0. Then what is the value of n? Value of n is a imaginary number. और भैया इमेजिनरी नंबर कैसा रहेगा? n तो हमको सिलेक्शन है, थिंग्स है, वो तो इमेजिनरी करते बैठेंगे क्या? तो रियल में होना चाहिए. ठीक है, दिस इज विच इज
which is not possible. So consider this. So consider n square plus 2n minus 15 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे माइनस 15. इसके फैक्टर्स निकलते हैं. 15 के फैक्टर्स क्या है भैया? 15 के फैक्टर्स 5 इंटू 3 है. ओके 5, लेकिन इसमें यहाँ पर माइनस है तो कोई एक माइनस करना पड़ेगा. इसको माइनस कर लेते, 5 को प्लस कर लेते, क्योंकि मिडिल साइन प्लस है तो बिगर साइन इसको दे देते. इसके फैक्टर्स हमको मिलते हैं यहाँ पर x प्लस n प्लस 5 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज n इक्वल टू माइनस 5 और n इक्वल टू 3. अब इसमें से एक मसला आ गया, n की वैल्यू निगेटिव आ गई और निगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल. देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 is the final answer. ओके, छोटे छोटे फार्मूले हैं जो देखिए हमने यहाँ पर यहाँ पर लिखे हमने रिजल्ट्स. उस रिजल्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिए हमने तो उसे प्रैक्टिस करने के लिए, और भी इसके ऊपर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. टाइम अभी कम होने की वजह से आगे बढ़ते हैं. Next type question. First, find R. 15C4. Given is that 15C4 plus 15C5 plus 16C6 plus 17C7 is equal to 18CR. अब प्रॉब्लम हम देखें तो कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, इधर भी 5. अब मुझे तो 4-5 बार ये फार्मूलाइज करना पड़ेगा. क्या लगता है आपको? फार्मूलाइज करना पड़ेगा 4-5 बार या कुछ अदर कुछ सोच एक्टिविटी कुछ कर सकते हैं हम? लगाओ दिमाग लगाओ. समझा? हाँ समझ गया होगा आपको, क्योंकि हमने एक रिजल्ट यहाँ पर लिखे हैं. यहाँ पे एक राइट, वेल डन. क्या रिजल्ट लिखे हमने? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? n प्लस 1 CR. दिस इज रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये रिजल्ट की वजह से भैया अभी हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आसान हो जाएगा. ओके, लेट्स सी हाउ वी हैव टू सॉल्व. हमको यूज करेंगे हम. Given is that 15C4 plus 15C5 plus 16C6 plus 17C7 is equal to 18CR. Okay, we bunch first two terms. Now we use this result. What is then? Then what is here? 15 and value of n same and value of R is difference of values of R is 1. Therefore we can use formula result for these two terms. Then what is result? n में एक ऐड कर दो, 15 में एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16. और ये 4 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है तो 5 ले लेंगे. ठीक है, उसके बाद प्लस जो बच गया. अभी एक तो टर्म चलेगी. अभी बचे कितने हैं? सिर्फ 3 बचे इधर लेफ्ट साइड में. ठीक है, इनको भी कर लेते हैं. इसमें वेरी गुड आपको आइडिया आ गया होगा. आप ये 2 बंच कर लेते. तो 2 बंच करेंगे तो n की वैल्यू सेम हो गई और r की वैल्यू भी 1 से डिफरेंस है, उसमें 1 का डिफरेंस है. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो यूज करो इसको रिजल्ट. तो n में एक ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 17C. 5 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है? बिगर नंबर इज 6. 15C6 करेक्ट. Then last number 17C7, 18CR. Now only 2 terms are remaining. And again we use this important result, very nice result. क्यों nice, क्यों important? क्योंकि बच गए हम ये फार्मूला यूज करने से. आंसर तो आना ही था, लेकिन बच गए उससे हम. तो फिर अब n value of n is same. Therefore 17 plus 1, that is we write it as 18C. 6 और 7 में bigger number 7, that's equal to 18CR. अब इधर भी एक बचा भैया, बीच में क्या है? इक्वल टू, मतलब आईने के सामने खड़ा है. 18 इंटू 18 सेम है तो R की वैल्यू क्या हो गई? दिस इंप्लाइज R की वैल्यू 7. राइट.
पहले तो लग रहा था तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूले से, तो रिजल्ट से क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, इजीली सॉल्व हो गया। तो कभी भी रिजल्ट्स, जहां जहां भी आपको की पॉइंट्स मिल रहे चैप्टर में, रिजल्ट्स मिल रहे, उसको याद करो, उसको नोट करो, उसको लिखो, तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस भी छोटे हो जाते हैं। और ये इसको ज्यादातर हम JEE में हमें काम आता है ट्रिक्स, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन टाइम कम है, आपको भी टाइम कम है, आपको बहुत सारा पढ़ना है। एक एक टाइप का क्वेश्चन ले चलते बस हम, न्यू न्यू जो कुछ क्वेश्चन दिखता है। अभी हमने R की वैल्यू निकाले, फिर से एक बार यही फार्मूले का एप्लीकेशन थोड़ा सा ले लेंगे, जो कि इसके ऊपर MCQ भी आया था लास्ट टाइम में। वो इस तरह से है, फाइंड वैल्यू ऑफ 47C4 प्लस समेशन R इक्वल टू 1 to 5 ऑफ 52 माइनस RC3। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालना है हमारे को। अब देखकर आपको भी लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर हमारे पास रिजल्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से साथ सोचो, आपका आंसर आ जाएगा। आपने सुना होगा, जब किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुड़ जाती है, तो उसे दिल से चाहो, पॉजिटिव थिंकिंग से चाहो, पूरी कायनात उसका आंसर लाने में जुट जाएंगे। ओके ओके ओके, लेट्स से तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C। अभी क्वेश्चन को हम आंसर बना देते हैं, 9 कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त 9 दिस इक्वल टू। तो पहले क्या करते थे, समीशन को फोड़ देते। कैसा फोड़ेंगे, आपको तो मालूम है, लास्ट पीरियड में आपने देखे समीशन और सीरीज देखे, तो इसलिए आपको मालूम है, सब पता है, ये समीशन का सिंबल है। तो कैसा इसको इन्वॉल्व करना पड़ता है, R की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं। चलो 52 माइनस 1 51C3 प्लस 50C3, एक कम करो, उसके बाद 49C3 प्लस 48C3 47C3, और कहां तक लिखो, 5 टर्म लिखना है। यहां पर कहा है R की वैल्यू 1 to 5 है, 5 गिन ले बेटा, 1 2 3 4 5, मतलब बराबर है, आगे नहीं जाने का, स्टॉप। ओके, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो लास्ट टाइम डरे क्या हम, नहीं डरे, कुछ नहीं। अगर रिजल्ट है हमारे पास, हमारे माइंड में रिजल्ट है, तो आंसर 50, सॉल्यूशन 50 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसा करेंगे, जोड़ी बनाना पड़ेगा। तो 47C4 है, तो यहाँ पे 47 तो नहीं है, यहाँ पर 47 है, इसको बंच कर देते हैं। 47C4 को बंच कर लेंगे, 47C4 प्लस 47C3, ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बंच कर देंगे। उसके बाद में ये लगने वाले टर्म्स हम उसको लिख देंगे, हम क्या क्या लगने वाला है हमारे को, 48C3 49C3 50C3 plus 51C3. Okay, now use the result, use again the result of this. Just previous we solved the question, that result 47, value of n is same and the value of r has a difference 1, therefore this become n plus 1 means 48, C4, this larger number 4. Okay, then 48 remaining terms are as it is. Remaining terms are is as it is. Now एक एक कम होते जाते, फिर से आ गया 48C4, बोलते ना भगवान की मदद करता है ताकत वालों का, हिम्मत वालों की मदद भगवान की मदद, हिम्मत करे प्रॉब्लम सॉल्व करने की, मदद आ रही है। देखो फिर से मैचिंग हो गई, अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर से n की वैल्यू सेम होगी तो क्या हो जाएगा, फिर n प्लस 1 49, r की वैल्यू 4 प्लस 49C3 50C3 and 51C3. Again and again we bunch these two terms and we can write it as, yes, correct 50C3 plus 51C3. Now remaining answer you can write here. आपने लिख चुका होंगे, ये सभी नहीं लिखे होंगे तो उसकी स्क्रीनशॉट लेना था।
स्क्रीनशॉट लिखते चलो, साथ में तो नोटबुक पेन रखते चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं. नाउ we punch again first two terms, then by using that result we get 51C4 plus 51C3. अब सिर्फ दो टर्म बचे और यहाँ पर अगेन here the value of n is same, again we use the result 52C4. This is the final answer. Hence the value of this is 52C4. हाँ, इसको अब फिर से सॉल्व नहीं करने का, क्वेश्चन का आंसर बड़ा आता है, आपको बस एग्जाम में भी ऑप्शन रहेंगे तो ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे 50C4, 51C4, 50C3 ऐसे ऑप्शन रहेंगे. इसका आंसर नहीं रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू आप वक्त लगेगा, टाइम लगेगा. तो देखें आपने किस तरह से हमने स्प्लिट करे. फर्स्ट पहले हमने समेशन को इन्वॉल्व करे, बाद में उसके टर्म्स बनाए, टर्म्स जहाँ पर n की वैल्यू सेम दिखे हमारे को उसको बंच करते चले हम, और बंच करके उसके आगे के वैल्यूज निकाल कर प्रॉब्लम को छोटा छोटा करके लास्ट स्टेज में यहाँ तक पहुँच गए. इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स हमने लिए थे कि दो रिजल्ट के ऊपर हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखे. क्वेश्चंस बहुत है, आपके पास बुक्स होंगे, बुक्स भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप उससे क्वेश्चंस लेते जाना, उसे सॉल्व करते जाना बिंदास एकदम. सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए. देखो टीचर का काम सिर्फ दे धक्का है, दौड़ने वाले आप है. हम सिर्फ आपको इंस्पायर करेंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन रेस में भागने वाले आप है, आपको ही भागना होगा. इसीलिए डू दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड इन द स्टूडेंट लाइफ. डू. जब तक आप कुछ करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, बैठोगे नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते. प्लीज स्टूडेंट्स, आपके वक्त आपका यही आपके लिए कि पढ़ना है, बस आपको दूसरा कुछ करना नहीं है. आपका ठीक है, अभी ऐप के थ्रू आप मोबाइल ले रहे हैं हाथ में, तो बस पढ़ाई ही करो, दूसरा कुछ भी मत जाओ, कुछ भी देखो मत, अपना टाइम पास मत करो. टाइम इज वैल्यूबल बेटा, बहुत टाइम वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है. उसका यूज आपकी स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ पढ़ना है. कमाने का काम आपके पिताजी है, माताजी है, बड़े भाई है, वो कमा रहे ला रहे, बस अभी आपका काम सिर्फ पढ़ना है. बी प्रॉम्प्ट, ईमानदार रहो, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट्स आएंगे. और देखो, बहुत बहुत थैंक्स बोलो हमारे राहुल रेखावर साहब को, जिन्होंने हमारे लिए भीड़ शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा काम किया. यहाँ पर इस ऐप के थ्रू अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं. वह तो मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं खुद तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आया हो तो कम एक्सपीरियंस है दूसरे के हिसाब से, लेकिन मेरे से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर है. मुक्कावाल सर है मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं आपको पढ़ा रहे हैं. बस सीखो आप लोग, मेहनत करो. हमारी बस अपेक्षा यही है कि सबने आगे बढ़ना. ठीक है, लिख दिया सबने, टेक स्क्रीनशॉट और राइट डाउन. ओके, इसमें सभी लोग जुड़े हैं. देखो, भीड़ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कैमरामैन भी यहाँ पर साथ में हैं, उन्होंने भी अपना वक्त दे रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं इतने कोरोना में, खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ पर आके खाना खा रहे हैं, परेशान है सब, लेकिन फिर भी आपके लिए सब कर रहे हैं. तो उनको भी थैंक्स बोलो, उनके लिए भी करो, अरेंजमेंट वालों को थैंक्स बोलो यहाँ के. ओके, now after the some problems we take some word problem. okay, पहले भी हमने वर्ड प्रॉब्लम ले चुके थे, लेकिन हमको रिजल्ट बताना था. फिर से वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम. व्हाट आर द वर्ड प्रॉब्लम्स? राइट डाउन द क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज कैन a man invite 6 friends to a party so that 2 or more of them remain present. रिमेन प्रेजेंट. क्वेश्चन का मीनिंग ये है, एक कोई मैन है, कोई पुरुष है, उसको दोस्त कितने हैं? 6 फ्रेंड्स है. ज़्यादा डीप में मत जाओ, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स. 6 फ्रेंड्स है और उसको पार्टी अरेंज कर रहा है. वो देखो, फ्रेंड्स भी कम रखना चाहिए. 6 फ्रेंड्स पार्टी अरेंज कर रहा है और उसमें सोच रहा है कि कोरोना चालू है, कितने को बुलाना है? कम से कम 2 को बुलाना है या फिर 2 से ज़्यादा भी बुलाना सोच रहा है. तो कितने चांसेस बनते हैं, कितने वेज बनते हैं, नंबर ऑफ वेज, कि हम मैथमेटिशियन को कैलकुलेट करना है.
बुलाएंगा वो, खाएंगा वो, और कैलकुलेट कौन करेंगे? हम करेंगे। ठीक है। पार्टी में क्या क्या हो सकता है? तो मैन कैन इनवाइट, क्या क्या इनवाइट कर सकता हो? 6 फ्रेंड्स है, 2 से ज्यादा करना है तो 2 फ्रेंड्स रह सकते हैं, और 3 फ्रेंड्स, और 4 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स, और 6 फ्रेंड्स। आखिरी में सोचा भाई सबको बुला दो। ठीक है, चलो आगे नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। अब नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे उसके? नंबर ऑफ वेज अगर सोचा उन्हें 2 को बुलाना है, सिर्फ 2 को बुलाना है, तो अब 6 में से 2 सेलेक्ट करेंगे वो। अब 6 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, 6 में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो कितने उसके वेज होंगे तैयार? तो आपको मालूम है सेलेक्ट कर रहा है 6 में से, तो हम क्या लिखेंगे? 62। या और अब उन्हें कितने सेलेक्ट कर रहा है? 3 कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा फिर? 63 और 64 और 65 और 66। ठीक है। अब ये तो हमने वेस लिख दिए, अभी बीच में और भी है, तो अब वेस क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना है कि एडिशन करना है सबकी? अब ये वेस सबकी टोटल हमको निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेस। अब टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पर निकालने के लिए हमको तो सिर्फ ये पर्टिकुलर वेज मिल जाएंगे, नंबर ऑफ वेज बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन फार्मूला। लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे भाई? तो उसके लिए हमको अब यूज करना पड़ता है काउंटिंग प्रिंसिपल। देयर आर 2 काउंटिंग प्रिंसिपल फॉर एडिशन, काउंटिंग प्रिंसिपल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप भैया को ये क्वेश्चन आ गया होगा माइंड में कि काउंटिंग प्रिंसिपल एडिशन कब, मल्टीप्लाई कब? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आपके घर में, आपका तो घर में इतने दरवाजे, महल में पकड़ लो, चलो महल में इधर साइड 3 दरवाजे हैं, इधर साइड 2 दरवाजे हैं। ठीक है, ये साइड से आने वाले को कितने वेज है? 3 वेज है। ये साइड से आने वाले को कितने वेज है? 2 वेज है। तो टोटल वेज कितने होंगे घर में आने वाले के लिए? कितने वेज हो रहे? बोलो। ये इधर से आ रहा है तो 3 वेज, इधर से आ रहा है तो 2 वेज। कितने वेज हो रहे? तो टोटल घर में आने के लिए कितने वेज है? 5 वेज। हमने यहां पर क्या करे? हमने दोनों वेज की एडिशन कर दी। समझ में आ रहा है लॉजिक? इसमें लॉजिक से सॉल्व करना पड़ता है, लॉजिक से आपको मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम एडिशन करेंगे। ठीक है। अब फर्ज करो मेरे पास 3 टी शर्ट है और 2 पैंट है। कितने टी शर्ट है? 3 टी शर्ट है और 2 पैंट है। तो टी शर्ट सेलेक्ट करूंगा मैं, तो कितने वे से सेलेक्ट करूंगा? यस, 3 वे से सेलेक्ट करूंगा। और पैंट मुझे चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो मुझे कितने वे से, मेरे पास कितने ऑप्शन है, कितने चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। तो अब मुझे टी शर्ट और पैंट पहनना है, तो मैं दोनों में, ये दोनों इसमें से मुझे सेलेक्ट करने का है। तो कितने वे से बनेंगे? कितने? 5 कैसे भैया? सलमान हो क्या? एक बार पहनेंगे नहीं क्या टी शर्ट? नहीं ना, 3 × 2। अब यहाँ पे 3 × 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा? 6। इससे में ये देखो, यहाँ पे तो डिफरेंस अलग है, यहाँ पे डिफरेंस अलग है। फॉर एग्जांपल देखो, ए से लेकर औरंगाबाद से लेकर बीड़ आ रहे हैं आप, औरंगाबाद से बीड़, आपको रास्ते कितने हैं? 3 रास्ते। बीड़ से सोलापुर जा रहे हैं आप, बीड़ से सोलापुर का आपको कितने वेज है? फर्स्ट करो 4 वेज है। तो आपको औरंगाबाद से सोलापुर जाना है, तो कितने वेज हुए? 7 वेज हुए क्या? ना, आपको कितने वेज होंगे? 4 × 3 दैट्स इक्वल टू 12। तो यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करे, दैट इज अ काउंटिंग प्रिंसिपल। तो बच्चों, परमुटेशन भी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट और काउंटिंग प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में काउंटिंग प्रिंसिपल भी रन करता है कि कब कौन सा यूज करना है। ठीक है चॉइस। और सिंपल, और एक बात बता दूं, बताओ, जब और आएगा, जब क्या आएगा? और आएगा, तो उस वक्त एडिशन करना, और जब एंड लग रहा है एंड, तो उस वक्त मल्टीप्लिकेशन यूज करना। देख सीख ले बेटा, सीख ले। तो यहाँ से आएगा या इधर से आएगा, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर लिए? एडिशन। एक तो ये इधर से आएगा या फिर इधर से आओ, इसके ऊपर ये डिपेंड है क्या भैया? नहीं है ना,
इधर से जाओ या इधर से जाओ, इसलिए हमने क्या कर दिए, एडिशन कर दी। अब टी शर्ट और पैंट, तो टी शर्ट पहनेगा पैंट भी पहनेगा, क्या ऐसा नहीं ना पैंट पहन लिया और टी शर्ट नहीं पहनेगा, मैं तो बोल रहा हूँ सब सलमान थोड़ी होते हैं, इसलिए तो दोनों भी करना पड़ेगा ना, डिपेंड है ना, एंड आ गया ना, टी शर्ट एंड पैंट, इसलिए मैंने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन। अब इधर भी देख ले, सीख ले, ए औरंगाबाद से बीड़, बीड़ बीड़ से 3 इंडिपेंडेंट है, बीड़ से सोलापुर 4 वेज है। अब औरंगाबाद से सोलापुर जाना है तो बाया बीड़ तो बीड़ ही जाएगा ना, इसको अलग थोड़ी रास्ता है, इंडिपेंडेंट ये पहले बीड़ जाएगा एंड बीड़ से सोलापुर, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई, दैट इज द काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो एक लॉजिक आप लगा लेना, जब भी और आने लगा एडिशन कर लो, एडिशन कर लो। देखो हम एडिशन कर लेते, आप 6c2 प्लस 6c3 प्लस 6c1 प्लस 6c5 प्लस 6c6, ठीक है, और की जगह पे एडिशन कर लिए। अब 6c2 की वैल्यूज आप लिख सकते हैं, फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 6c2 ये आ जाएगा 15 प्लस 20, 6c1 सॉरी यहाँ पर 4 है, 6c4 we get again 15 plus 6 and plus 6c5 is 6 and 6c6 is 1। आप ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, आपको याद रहना चाहिए 15 और सबके एडिशन करो आप, 15 प्लस 15 30 प्लस 20 40 50 50 प्लस 6 56 प्लस 1 57, that is the 57। Hence total number of ways to invite the friends are 57। look at this problem is very important, problem is not important, this concept is very important। you can आपको एग्जाम में ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको उसमें कुछ चेंज हो सकता है, भाई मैन बुला रहा तो वुमेन बुला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हीरो बुला रहे हैं पार्टी के लिए, कुछ भी चेंज होता है, लेकिन कंसेप्ट उसका सेम होता है। आपको कंसेप्ट याद करना है, मेन कौन सा हमने प्रिंसिपल यूज करे आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन का आंसर लिख लो आप या फिर आगे बढ़ो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ले लेंगे हम, अभी एक क्वेश्चन ले लेंगे आपके सामने जो आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा। और एक क्वेश्चन लेंगे, अगर वो क्वेश्चन में दूसरा अगर प्रिंसिपल है तो आपको भी और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ले लेंगे क्वेश्चन, अ ग्रुप consists of 8 men and 5 women. Find number of committees of 5 persons that can be formed if committee consists of at least 3 women। मतलब 5 की तो कमेटी बनाना है, कमेटी कितनी की बनाना है, 5 की, और उसमें वुमेन्स कितने, 3, मतलब महिला आगाड़ी है। भाई महिला का जमाना है आजकल, महिला और महिला काम भी अच्छा कर रहे हैं आजकल, होना भी चाहिए। महिला घर से बाहर निकल रहे हैं आजकल, अपने अपने अच्छे सोसाइटीज़ में, कंपनीज में काम भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक पीरियड था, बोलते थे कि चूल यानी मूल, ठीक है, ओके। बाय द वे डिस्कस बढ़ते जाएगा, हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम है, कमेटी बनाना है, जिस कमेटी में टोटल पर्सन कितने हैं, 5 रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने मेंस है, 8 मेन है, और वुमेन कितने हैं, 5 वुमेन है। अब कमेटी जब बनाना है, कमेटी तो कमेटी कैसी रहेंगी, तो देख लो 5 पर्सन लेना है,
कम से कम कितने होना, 3 वुमेन होना, 3 क्या होना, वुमेन। तो फिर बचे कितने, 2 मेन। या फिर कैसी बन सकती कमेटी, और आ गया भैया, और 4 वुमेन ले लो एटलीस्ट, मतलब मिनिमम, उससे ज्यादा भी ले सकते हो। तो 3 है तो आप 4 ले लेंगे, तो आप कितने बचे भैया, 1 तो मेन बचा, या फिर और 5 वुमेन। ऐसी कमेटी का फॉर्मेट रहेगा हमारा, ठीक है। देन अब इसको हम सिलेक्शन करना है, हमको लिखना है, तो नंबर ऑफ वेज लिखेंगे आप, नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज कैसे बनेंगे, देखो 3 वुमेन है, टोटल वुमेन कितने हैं, 5 है, तो 5 में से कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 5C3। और 2 वुमेन है, 2 मेन है, तो मेन कितने हैं, 8 है, तो 8C2। और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, और क्या है, ये 3 भी लेना है एंड यानी 2 भी लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अ काउंटिंग प्रिंसिपल। और चलो और लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमने टोटल नहीं लिखे तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे टोटल लिख लेते आप, टाइम कम है टोटल, तो इसको क्या कर लेंगे, और को प्लस कर देंगे। 4 वुमेन, 4 कितने वुमेन है, 5 में से 4 आ गए, 1 वुमेन इंडो 8C1 और प्लस 5 वुमेन ओनली, अब सिर्फ 5 ही थे, तो 5C5। अब यहाँ पर मेल नहीं है, अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। 5C3 मतलब 10 हो जाएगा, 8C2 28 हो जाएगा, प्लस 5C4 हो गया, 8C1 8, 5C4 5 plus 5C5 is 1, and then answer is 280 plus 40 plus 1, that's equal to 280 plus 40, that's equal to 321. These are the total number of ways, total number of committee. Look, this question is also important. We use the both concepts, that is first counting principle and second counting principle also. Here also combination of selection. Look it here, this is very important. इस टाइप के क्वेश्चन कार्ड्स में भी रहते हैं, कार्ड्स जो हम पत्ते खेलते हैं, ताश के पत्ते, वो आपने प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व भी करे होंगे कभी, उसमें से हम जब सिलेक्शन करते हैं तो वो किंग होगा कि क्लब होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में है, तो उसको भी इसी टाइप में आपको फॉर्मेट करना पड़ता है। वहाँ पर भी आपको फर्स्ट काउंटिंग, सेकंड काउंटिंग एंड यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन फार्मूला। ओके ओके ओके, थैंक्स। ओके, दोनों भी आना, इधर दोनों भी आएंगे ना, कवर होगा ना, ये भी लेना है, ये भी लेना है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज आपके सामने रखे हमने, जो एग्जाम में कुछ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है, इफ n+1 C3 is equal to 2 and C2 is equal, then you have to find value of n. Solve this question, try to solve this question. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक पर लिख के लो, साथ में पैरेलल सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया होगा। यस, ठीक है, देखते हैं। n+1 C3, अब हमको ये फार्मूला यूज नहीं करना है ज़्यादातर, क्यों टाइम बहुत बढ़ जाएगा। इसको हम n+1 C3 को हम रिवर्स गियर में, जो हमने एक रिजल्ट लिखे थे हमने, कौन सा रिजल्ट, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो LHS में क्या है, n+1 C3, n+1 C3, तो उसमें एक ऐड हुआ, इसका मतलब क्या हो सकता, NC प्लस क्या हो सकता, NC। यहाँ पे क्या है, बिगर नंबर 3 है, यहाँ पे बिगर नंबर क्या आ सकता, 2 आ सकता। ओके, ये दोनों का एडिशन क्या मिलेगा, n+1 C3 दैट्स इक्वल टू 2NC2 मींस 2NC2, that is we can write this as also NC2 plus NC2. Now cancel this, then you get NC3 is equal to NC2. 3 is equal to 2, no, 3 is equal to n minus 2, therefore n is equal to 5. Yes, आपका किसी का आंसर आ भी गया होगा, इस तरह से इसका आंसर लिए। शॉर्टकट मेथड यूज करो, ये रिजल्ट हमने यूज करो यहाँ पर, यूज दिस रिजल्ट एंड देन यू फाइंड फॉर यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन नॉट, हमको जरूरत नहीं यूज करने की इसकी, हम सिर्फ रिजल्ट यूज कर लिए, जस्ट विद इन सेकंड में हमारा आंसर आ जाता है। अगर इसको फार्मूला यूज करेंगे तो और टाइम लग सकता, वो भी जल्दी हो सकता है किसी का, अगर फास्ट कर सकते कोई, तो इसका आंसर क्या है, 5। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट और solve it. Now take another question.
take another question. What is the question? Question is that NCR plus 1 plus NCR minus 1 plus 2NCR is equal to what? अब सबकी वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन वैल्यूज निकालने के लिए क्या है, उसमें n की वैल्यूज भी नहीं है और की r की वैल्यूज भी नहीं है, तो कुछ तो भी इसको हम कर सकते हैं एडजस्टमेंट। और दोनों यहाँ पर n सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, 1 नहीं है, तो अभी का रिजल्ट हम यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज द रिजल्ट, देयरफॉर नाउ देयर इज अ टर्म्स 2NCR, सो आई स्प्लिट दिस टू टर्म्स इन summation of two terms, that is NCR plus 1 plus NCR minus 1 plus NCR plus NCR. Okay, that is अब ये एक जोड़ी इसके साथ बना देंगे, that is NCR plus 1 plus NCR, और दूसरे के साथ इसकी जोड़ी दे देंगे, that is NCR minus 1 plus NCR। बहुत सिंपल होगा, अभी बहुत सिंपल होगा भैया। अब देखो यहाँ पर देखो, what is there here, value of n is same and value of r are little larger than 1, but difference is 1, therefore we can use the result, that is n is same, therefore n plus 1, see it is a bigger number of this r plus 1, ये दोनों की जगह पर ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस NCR minus 1 NCR, then what, n is same, therefore n plus 1, and what's the bigger number, bigger number is r. Only two terms are remaining here, therefore we can add these two terms also. How? Because n plus 1 n plus 1 is same and difference of r is 1, therefore I write that n plus 1 that is n plus 2, and who is the bigger number? Okay, very good, that is r plus 1, hence our answer is n plus 2 CR plus 1. This is the question asked in AIEEE 2015 3. Therefore use this result, remind this result, you can solve easily, there are no vastly calculations. Okay, then answer is what, n plus 2 and CR plus 1. Now third question is asked in CET, and we also discuss in theory also. What is result? Okay, 52C4, and solve this question similar way. Number of MCQ can be solved, but there are limitation of time also. So draw, get बाहर से किताबें लाओ, बुक्स लाओ, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले से मेथड पढ़ लो, पहले हमारी जो मेथड हमने पढ़ा है उसको देख लो एक बार, रनिंग नोट्स में जो पढ़ लो एक बार, तो बाद में कैसा इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो, इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ए लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाद में फिर हायर लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करो, यू कैन मास्टर इन दिस प्रॉब्लम। ओके कृष्णा, ओके तो यहाँ पर हमने एमसीक्यूज भी ले लिए, बहुत सारे एमसीक्यूज बाकी है, आप घर पे कर सकते हैं। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे कोऑर्डिनेटर सर का, सैयद सर का, लाखे सर का, और जिन्होंने ये कोशिश की ऐप बनाने की, ऐप के काम कराने की, खास करके बीड़ वासियों के लिए और हमारे पूरे महाराष्ट्र वासियों के लिए, जो है हमारे यहाँ के जिलाधिकारी राहुल रेखावार साहब, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टीच स्टूडेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।